Hello students. Students, in our previous video, we started the ninth chapter of your geography book, Life in the Temperate Grasslands. And during this course, we knew that the world grasslands has been categorized into two broad categories, and those that occur in the temperate region and those that occur in the tropical region. So students, we knew the name of the grasslands of tropical regions and temperate regions. So let's revise once again. Savanna, Campus, and Lianas. These are, the tropical grasslands, and these are in East Africa, Savanna, Campos in Brazil, and Leonos in Venezuela. And in temperate grasslands, students, we knew that Pampas in South America and prairies in North America, veld in South Africa, steppe in Central Asia, and down in Australia. But in this chapter, students, we have to focus only two temperate grassland, and that is prairies and veld in North America and South Africa respectively. So students, let's start the remaining part of this chapter. But before starting, I would like to revise our previous video for those students who didn't watch it. So listen carefully. The prairies, the temperate grassland of North America are known as the prairies, and it's a region of flat, gently sloping or hilly land. Students, first we have to know that where it is located. It is located, whenever you see the map of North America, so you will see that this is Rocky Mountain, and it is this is the prairies grassland. So you can see here, this is Canada. In northern part of North America is Canada, and here in central part you can see USA, United States. So prairie is extended Canada to here about 6,000 kilometer. It means the extension of this prairie is from north to south about 6,000 kilometer, and from east to west about 2,000 kilometer. So students, we also read about the prairie. You can see here, this is the map of prairie. It is, students, we can say that it is sea of grass, because up to 2 meters high dominates the grass, the landscape, and it is actually a sea of grass. So sometimes it's also ask that why prairies is called the sea of grass. So student, whenever we see the map of the prairies grassland, we can know that in prairies this is about treeless, but near the low lying plains flanking river valleys woodlands can be found especially. And this is drained by Mississippi in the Canada, in USA, and Saskatchewan river in, you can see, in Canada. You can see here in Canada, Saskatchewan rivers and its tributaries, and Mississippi rivers in United States of America. Students, for now we have to know that the people, means the native of this region, is, you can say, the grassland of prairies were the home of Native Americans, often called the Red Indians. And in spite of them, there are also so many the native of prairies whose home of other tribes, also like the Apache, the Crow, the Cree, and the Pawnee. And students, now we have to know about the climate of
प्रेरीज। क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज के बारे में हम जानेंगे कि बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता क्या है कि गर्मी में गर्मी पड़ती है काफ़ी, और ठंडा में ठंडा काफ़ी पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है स्टूडेंट, वेन एवर वी सी द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो आप देखेंगे कि इधर नॉर्थ भाग में देखें आप कुछ भी नहीं, कैनेडियन शील्ड है यहाँ, और इस तरफ आप देखेंगे आर्कटिक ओशन है जो कि बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इस साइड से जो हवा बहती है वो काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए आप देखेंगे कि कैनेडियन शील्ड का जो इलाका है नॉर्दर्न भाग वो लगभग ठंडा में माइनस टेम्परेचर माइनस डिग्री में चला जाता है, जबकि अगर इधर देखेंगे आप, इधर का इलाका जो है वो गर्मी में काफ़ी गर्मी आ जाती है। यहाँ विनिपेग, अगर हम एक सिटी का बात देखेंगे, आपको कनाडा का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में है उसका रिकॉर्ड किया गया आपके बुक में, तो यहाँ देखिए द समर्स आर वार्म with temperatures of around 20 degrees centigrade, while in winter minus 20 degrees centigrade has been recorded in Winnipeg, Canada. And winters, a thick blanket of snow covers this region. इस रीजन में क्या होता है, काफ़ी मोटी चादर बर्फ़ की हो जाती है। बिकॉज यहाँ आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि कैनेडियन में जो है वो ब्लिजार्ड चलता है, यानी कि बहुत तेज़ आंधी चलती है हवा, जिसके चलते पूरा का पूरा ये पार्ट तो पूरा जमा हुआ रहता है, पॉपुलेशन भी इधर कम है। इधर आएंगे प्रेरीज के रीजन में, तो यहाँ आपका वही कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में जान ले स्टूडेंट्स कि फ्लोरा एंड फौना, इधर जो कुछ गर्म हवाएं जो बहती है वो क्या होती है, उसे हम चिनू कहते हैं। आप देख लें चिनू के बारे में, इट्स अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयरफॉर rises the temperature within a short time, and this increase in the temperature result in the melting of snow, making pastures land and available for grazing of animal. So students, now we have to know about the flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना के जहाँ तक हम बात कहेंगे तो प्रेरीज हम जानते हैं कि यह प्रैक्टिकली ट्रीलेस है, लेकिन आपको कहीं कहीं वुडलैंड भी है। वाटर अगर हम कहेंगे तो यहाँ अवेलेबल है, एंड trees such as willows, elders and poplars grow. प्लेसेज जहाँ की आपको रेनफॉल 50 डिग्री से के आसपास होता है वहाँ आपको सूटेबल है फॉर फार्मिंग एज द सॉइल इज फर्टाइल। तो इसमें हम देखेंगे मेज होता है, सोयाबीन होता है, कॉटन एंड अल्फा भी पाया जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ चूँकि ग्रास, यहाँ की ग्रास आप देखेंगे तो 2-2 मीटर हाई तक भी होता है, लेकिन these areas are suitable for cattle rearing, large cattle farms called ranches, उसको ranches कहते हैं। और अगर हम यहाँ के एनिमल के बारे में देखेंगे तो बाइसन या फिर उसे अमेरिकन बफेलो भी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है। लेकिन स्टूडेंट इसका जो है इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग जो हो रहा है, जिसके कारण आपको इसका स्पेसीज को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, ये ख़त्म होते जा रहा है। इसके अलावा यहाँ रैबिट है, कोएटिस है, आपको गॉफर्स है एंड प्रेरीज डॉग्स माने जाते हैं। पीपल की बात अगर हम करें यहाँ, तो यहाँ जनरली जो यहाँ के लोग हैं वो आपको काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, और यहाँ जो है एग्रीकल्चर इनका मेन एक्यूपेशंस है। सो ये हार्नेस टेक्नोलॉजी यहाँ है, इसका यूटिलाइज लोग करता है। बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड से होता है, कल्टीवेशंस एंड यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस जो हार्वेस्टर होते हैं। कंबाइंस हार्वेस्टर स्टूडेंट जो होता है जिसमें सारा काम आपको सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा। जैसे एक ऐसा ह्यूज मशीन होता है जो रीप्स, थ्रेसेस एंड सैक्स विथ इन अ सिंगल ऑपरेशन। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊं, आपके बुक में नहीं है लेकिन दूसरा मैं दिखा रहा हूँ। ये जो आते हैं ये आपको कंबाइन हार्वेस्टर के रूप में है, जो ह्यूज मशीन है विच रीप, स्ट्रेप, थ्रेसेस एंड सैक्स विथ इन सिंगल ऑपरेशंस, ये मशीन्स है। तो ये आपके पीपल हो गए। और यहाँ के अगर बारे में हम कहें कि आपको जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में हम कहें स्टूडेंट, तो ये देखिए आप अमेरिकन प्रेरीज के जो है शिकागो है, इसके बाद आपको मिनियापोलिस है, इंडियानापोलिस है,
कैंसस है एंड डेनवर है। एंड इन द कैनेडियन प्रेरीज के बाद में हम कहें तो यहाँ आपको एडमोंटन है, सास्केटून है, कैलगरी है एंड विनिपेग, ये मुख्य आपके शहर है यहाँ के। चूँकि ये सब शहर स्टूडेंट्स हैं जो इनके जो टेक्नोलॉजी है यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, आप देख सकते हैं यहाँ के। और ये सब इसके बाद हम नेक्स्ट में इसे हम आप जो है वीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इस तरह है। और आपको बाकी हम नेक्स्ट में अब आपको पढ़ेंगे वेल्ड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।